وہ شہری جو ابھی تک سول کلب کے نام سے معروف نہیں ہے، ان کو آپ تعارف کیا کراتے ہیں؟ بولے صاحب اس کے لیے ایک تو یہ ہے سول آفیسر کلب، اس جی میں ڈی سی صاحب ہوتے ہیں اس کے چیئرمین یا اس کو صدر، جی ایک میں جو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں ہماری جو سالانہ باڑی بنتی ہے وہ چینج ہوتی ہے۔ پہلے 1 سال کی ان کی میعاد ہوتی تھی، اب ان کی میعاد ہو گئی ہے 2 سال۔ اچھا اب ہم نے خود ہی کیا ہوا ہے، ہم خود اس کی سلیکشن کرتے ہیں، اب الیکشن نہیں ہوتا، پہلے الیکشن۔ تو اس کی پبلسٹی کے لیے یہ مسائل ہیں، اب ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر ہے یا اے سی صاحب ہے یا ڈی سی صاحب ہے، ان کی سرپرستی نہیں ہوتی۔ ایکچولی تو یہ ان کا کام ہے، ہم ہے پبلک کے نمائندے یا پبلک کے مثال وہ ہوتے ہیں، ممبر ہے۔ سول سوسائٹی والے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہے جو ہم ان کی پبلسٹی کریں اور لوگوں کو گائڈ کریں کہ آئیں سول کریں۔ اس کی ممبرشپ کیسے حاصل کی اس کی جاتی وجہ ہے؟ سے ممبرشپ یہ ہوتی ہے اس کی، اب جو پچھلی ہماری باڈی ہم نے تو اب موقع ملے اب سٹارٹ ہوا ہے، پہلے اس کی جو ممبرشپ تھی اس کی 10,000 تھی۔ یہ 10,000 فیس 10,000 وہ ون ٹائم ہے یا ون سالانہ؟ ٹائم ہوتی ہے، اس کا وہ داخلہ ہوگا، جی نام اس کا لکھا جائے گا، اس کے بعد اب منتھلی بھی ہم اس کو سالانہ بھی چینج کرتے ہیں، اس کی فیس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب 1500 ہے فی ممبر جو گیم کھیلتے ہیں، جو گیم نہیں کھیلتے ان کے لیے ہے 1,000 ماہانہ؟ ماہانہ۔ اس جی کے بعد جو 10,000 وہ دیتے ہیں وہ اس کے بعد ان کا نام لکھا جاتا ہے، اس کے بعد وہ کرتے ہیں لائف ٹائم ممبرشپ وہ مل جاتی لائف ٹائم نہیں ہوتی، ممبرشپ ہوتی ہے، ممبرشپ ہے۔ اس ہوتی کے بعد منتھلی اس کا جو چندہ ہوتا ہے، جو ڈیوز ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں، تو وہ سلسلہ پہ آگے۔ ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص کوالیفکیشن کوئی چاہیے؟ کوالیفیکیشن نہیں، پہلے ہوتے تھے مسائل ہوتے تھے، پہلے اس میں یہ ہوتا تھا ہمارے صرف ساتھ ہی جب یہ تحصیل کا لگا عدالت بھی ساتھ ہوتی، جی اس ٹائم وہ آفیسر بھی آتے تھے، ڈی سی اے سی بھی آ جاتے، ڈی سی تو نہیں تھا، تحصیل کا اے سی صاحب آ جاتے تھے، مجسٹریٹ صاحب آ جاتے تھے، جو ججز ہوتے تھے وہ بھی آ کے گیم کھیلتے تھے۔ اس ٹائم تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، تقریباً 100 200 250 کے لگ بھگ تعداد ہوتی تھی ممبرشپ۔ اب وہ آفیسر چینج ہو گئے، زمانہ بھی چینج ہو گیا، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے وہ آئیں گے تو ممبرشپ میں اضافہ ہوگا، لوگ ان کو دیکھ چکے ہیں۔ صحیح اب ہم وہی پبلک کے لوگ ہیں، ہم ان میں زیادہ تر تعداد بخلا کی بچی ہے جو اس کو اپنی مدد آپ کے پیسے چلا۔ صحیح کوئی امداد اس کی ڈی سی صاحب کو ہم نے 2 3 دفعہ کوشش بھی کی ہے، انوائٹ بھی کیا ہے، آتے بھی ہیں ڈی سی صاحب، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا، ہمیں فنڈ وہ نہیں دیتے۔ خان صاحب، آپ کی کلب میں لیا کی جو کریم ہے وہ اس کے ممبر ہیں، وہ اس کے عہدیدار ہیں اور ڈپٹی کمشنر صاحب اس کو سپر ہیڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے بھی مسائل حل نہیں ہوتے ہیں تو عام شہری کے، عام ہاں نوجوان کے جو سپورٹس کے جو پرابلم ہے وہ کیسے حل ہوتے ہوں بالکل گے؟ بولے سب ایسے روح کے مسائل تو ہیں جب آپ مطلب تبلیغ یافتہ لوگوں کو یہ حالت ہے۔ میں خود مثال پچھلے 1 سال میں 2 سالوں میں 3 دفعہ ڈی سی صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا، ہم نے ان کو کہا کہ یہ کوئی سی فنڈ ہے، ہم نے کوئی زیادہ فنڈ ہم نے کلر تو کیونکہ وہاں پہ ملازم ہے، جی وہاں پہ سٹاف ہوتا ہے، وہ چھوٹے بچے جو بالے کھا کے ٹھیک ہم جنہیں کہتے ہیں ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، تو اکثر ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب جو ہوتے ہیں نا، جو نیبس کے صاحب وہ پلے سے لگاتے ہیں، کیونکہ اس کی اتنی آمد نہیں ہوتی، وہاں ہم نے ایک کپ چائے کا بھی دینا ہوتا ہے، وہ ہمارے ثقافت ہے، پچھلے 50 60 70 سال ہو گئے، وہ چائے ہمیں لازمی اتنا بھی ہوتی ہے۔ جو بھی مثال لیبر ہے گیسٹ بھی آ جائے اس کو تو ہوتی ہے، جی تو اس کے لیے ممبرشپ کے لیے بھی لازمی ہے۔ اس کے بعد ہم بالے دیتے ہیں، ہماری صحیح جو ٹینس والی بالے ہے نا وہ اچھی خاصی کاسٹ میں، اس میں تقریباً 2200 کا ایک دفعہ ہوگا، اس میں 3 بالے آتے ہیں، یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم نکل جائیں۔ اکثر ہمارے جو عہدیدار ہوتے ہیں وہ خود سے لگاتے ہیں، پچھلے ہمارے سابق جنرل سیکرٹری تھے مطلب عمان علی جیسا تھا، جی تو وہ بیچارے مطلب کہ کافی انہوں نے وہ انویسٹ کیا، کیونکہ عام ہی ہے تنخواہ، وہ جو فیس ہے وہ بھی 1500 ابھی ہم نے کی ہے، وہ بھی کافی دوست کہتے ہیں زیادہ ہے، ہاں، اس سے پہلے وہ تھی کم۔ اچھا خان صاحب، لیا میں سول کلب کے تحت لان ٹینس ہوتا ہے۔ لانگ ٹائم لان ٹینس میں لیا کا کوئی کھلاڑی، کوئی پلیئر ایسا ہے کوئی جس نے کوئی پنجاب میں یا پاکستان لیول پہ کوئی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہو؟ ویسے پاکستان لیول پہ پنجاب لیول پہ لیا کی ٹیم ہماری گئی، کیونکہ جی وہاں پنجاب لیول کے لاہور میں تھے، وہاں کے وہ مقابلہ اتنا آسان نہیں ہوتا، تو ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے جہاں ہمیں پہنچنا چاہیے۔ میچ ہمارے ہوئے، اچھا فائٹ کیا ہمارے دوستوں نے، تو جہاں کے نوجوان نہیں ہوتے۔ ڈی جی خان بتا ہمارا ڈویژن ڈی جی خان ساتھ یا وہاں جاتے ہیں، جی ٹینس کے میچ وہاں ہو جاتے ہیں، وہ کمپٹیشن اچھا ہو جاتے ہیں، کبھی ہم جیت کے آ جاتے ہیں، کبھی وہ جیت۔
भुगतान में भी मिसाल जो नज़दीक के इलाके जहाँ हम जाते हैं, जहाँ डिवीजन लेवल पे मैच होते हैं, तभी हमारी टीम ये वाली जीत जाती है, तभी पॉपुलर टीम जाती मगर मेरे लिए ये बात बड़ी हैरानकुन है कि 70 बरस है जिस कलर की लाइफ हो, अभी तक उनमें एक भी खिलाड़ी जो है ऐसा है। पैदा नहीं हुआ नहीं हुआ। जिसे हम ये लिया का तारुफ कह सकें, लिया की शान कह सकें कि लिया सिविल क्लब ने कौमी सतह पे लान टेनिस का एक खिलाड़ी पैदा किया। पर इसे वही करने वाली मसला है, अब भुगतान भी जाने वाले से जी हमारा कम से कम 35 से 40 लाख खर्चा है, कन्वेंस पे बंदों को लेके जाना, ये वो बाकी उसकी जो मेहनत है गेम की वो अलग है, वो डिवीजन मतलब ये 40-50 हज़ार लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। सही बात है। हम बालें खुद से लेते हैं, खुद से वो पैसे भी तो हम खुद से लगाते हैं, चंदा तो मामूली से है का बंदा भी एक डेली का हो जाएगा। जी तो इसलिए वो क्योंकि डीसी या एसी साहब हो गए या डीसी साहब हो गए, सपोर्ट्स ऑफिसर साहब है या बड़ी साहब है, उनको भी कई दफा एहतजाज की, मतलब जितनी हो सकती है जितना फंड होता है वो तो हमें दे, लेकिन वो हमें पिछले 30 साल नहीं। तो कहाँ फंड जाता है? तो बलदियाती इदारे हैं, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है, हुकूमत पंजाब है, अराकीन असम्बली है, तो ये सारे इदारे जो हैं ये फंड्स तो इनके पास होते उनसे हैं। फंड सपोर्ट्स का बेपना फंड, अब जी जिम्नेजियम बना हुआ है वहाँ तो फंडिंग होती है, जी वहाँ तो वो भट्टी साहब जो है डिस्ट्रिक्ट के जात स्पोर्ट भट्टी साहब जी सपोर्ट्स ऑफिसर जो है, हाँ जी तो वहाँ क्योंकि वहाँ वो गेम खेलते हैं, वो लोग वहाँ जाते हैं, वो उन्होंने जिम्नेजियम बनाया हुआ है जमीन किस्म का, तो इसको तो वो इतनी अहमियत नहीं देते। इतने मुश्किल से हम उन्हें इनवाइट करते हैं कि आप जहाँ आ जाए, इतनी पार्टी उनको देते हैं, लेकिन उसके बाद साल साल वापस नहीं आते। मगर मैं आपकी बात सुन के हैरान हो रहा हूँ कि वोकला सोसाइटी का सबसे पावरफुल तबका होता है, हाँ पिलर भी ऑफ है द ये सोसाइटी है। सोसाइटी, अफसोस की बात है, तो हाँ भी तो है, आपको अफसोस भी है। वोकला की अगर बात नहीं सुनी जाती, तो और किसकी बात सुनी जाए? डॉक्टर हैं और संजीदा लोग हैं, बड़े मसला वही है ना, जबरदस्त फंड जी शख्सियत जी आपके मेंबर हैं, बिल्कुल है। तो अगर इन सारों की बात नहीं सुनी जाती तो सुनी किसकी जाती है? बस मसला तो यही है, पोजीशन ये है कि डीसी एसी या सपोर्ट्स ऑफिसर के पास बेपनाह फंड है, जिम्नेजियम में जाके आप जाते हैं, आपका वो मुशाहिदा हो, जी कितना जदीद किस्म का उन्होंने सामान वहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ पे मुलाजिम भी हैं, हुकूमत के खाते में उनकी तनख्वाहें देंगे, हम तो बच्चों को तनख्वाहें भी खुद देंगे, हमारे जो मुलाजिम है खुद से तनख्वाह देंगे। कितने मुलाजिम काम करते हैं? मतलब 2-3 तो हो गए ना मेन मुलाजिम जो बड़े, बाकी 7-8 तो बच्चे हो जाते हैं, तकरीबन उनकी ये 10 के लाख मिलते हैं, नाम वाला एक छोटे मुलाजिम को मुलाजिम की तनख्वाह कम से कम 18-20 हज़ार से नीचे तो हो नहीं सकती। सही बात है। तो जो हम चंदा इकट्ठा होते हैं वो चीज़ उसकी फंडिंग होती, हमने बाले भी ले लिए पल्ले से, हमने वो चाय भी बना के वो पिलानी होती है, नेट भी हमने ले लिए, और नेट भी अच्छे खासे महंगे आते हैं। जी लॉन वो टेनिस बड़ा महंगा खेल है, टेनिस का वो बल्ला भी उसका कम से कम 5-10 हज़ार से स्टार्ट होता है, वो चला जाता है लाखों तक। लाखों में होता है। वो तो चलो बंदा जो आता है गेम वाला वो खुद लेके आता है, जी वो मतलब ये मसाइल है, और ये मसाइल का मैं चाह रहा हूँ, मतलब कह रहा हूँ ये डीसी साहब ने ये होती, हमने पिछले पिछले हर साल डीसी साहब को बुलाते, हमें कितनी इंतजा होती है, हमें 50 हज़ार 1 लाख, 1 लाख 50 हज़ार तक भी देना उनको मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। मुझे एक डीसी साहब ने कहा, मैंने कहा सर वो हमें 50 मिल जाए ना, हमारे बच्चों मुझे खाए होंगे, डीसी साहब कहते हैं हम अपने बिल दे सकते हैं, आप हमें देते हैं 50 हज़ार, बिल्डिंग की ये हालत है बड़े साहब, 1900 जिला बना 82 में, जी उसमें उसकी बिल्डिंग बनी, तो फैसल तहसील साहब मेरे ख्याल है बड़े जिंदा है, डीसी साहब पहले थे, बहुत पुरानी बात हो गई। हमारी बात होगी, वो बिल्डिंग बनी 40 साल है, अब बिल्डिंग एंड हो गई, 2-3 दफा कंप्लेन की है, किसी टाइम बिल्डिंग नीचे गिर, बहुत पुरानी बिल्डिंग। 40 साल जो हो गए, उससे भी ज्यादा हो गए बिल्डिंग बने हुए, बने 5 साल हो गए, 82-81 में तो उसका इतना हुआ है, जी बिल्डिंग भी खत्म हो गई है, आप पिछले 1-2 साल हो गए, हम लोग प्लान भी बना के लोगों तक गए अपने, अमल नहीं हुए, अब हम खौफ ज्यादा भी है, वो बिल्डिंग खुदा ना खासा कहीं बजे जो उसका नुकसान है, और सड़क की हाइट होने वो से तो खैर ऊंची हो गई है, वो फिर वो भी वो उसका आपकी बिल्डिंग तो वैसे ही डाउन हो गई है। वो बहुत नीचे हो गया, अब उसको बना लिया, बनाने वाला कौन है, मतलब है वो, हम तो बुला था, अब वो कहते हैं बुलाए, मेरा दिल नहीं करता, मेरे कहते डीसी साहब को बुलाओ, चलो बोलो कुछ नहीं, अच्छा आपके क्लब के साथ वुमेन क्लब भी है, लेडीज क्लब, लेडीज क्लब जी। है, वो फाल है? वैसे लेडीज क्लब ये है, लेडीज क्लब फाल तो है, उसमें आप क्योंकि लेडीज तो आती नहीं है, लेकिन उसका जो है डे टाइम, जी रात के टाइम तकरीबन कोई 40-50 लेडीज वॉकिंग पर, वो ठीक है। जहाँ पे हमारी टेरेस होती है ना, जी क्योंकि जो लेडीज क्लब है उसका नीचे ग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, हम घास भी नीचे नहीं लगा सकते,
उसकी एक दीवार भी थी, फिर हमने उसको सीधा किया। अब वो उस क्लब में हमारी वो लाइटें लगी हुई है, वो लेडीज वहाँ वॉक करती थी। तकरीबन 8:30 के बाद 10:30 2 ढाई घंटे वो लेडीज मोहल्ले की जितनी भी है वो अच्छा, ये माशाल्लाह बेहतरीन माहौल होता है लेडीज के ख़वातीन लिए, के लिए ये बहुत सहूलत है। तहफ़्फ़ुज़ है। एक तो चार दीवारी तहफ़्फ़ुज़ भी है, और उसके बाद कोई बंदा आम आ भी नहीं सकता। सही बात है। तो ये ख़वातीन के लिए वहाँ क्लब मौजूद है मगर उनको सहूलत नहीं है। सहूलत तो ये है वहाँ की तो दी हुई है, वहाँ पे आम बंदा भी नहीं आ मगर वो सकता। एक तहफ़्फ़ुज़ उनका है। उनका तो जो अपना क्लब है वो तो फिर वो वीरान पड़ा है। मतलब सिर्फ क्लब करेंगे, उसमें मेंबरशिप है। अब वो ख़वातीन तो मुफ़्त आती हैं। हुँ, मेंबरशिप के लिए वही मसाइल होते हैं, लोगों को महँगाई आपको भी पता है कितनी है। अब मेंबरशिप को उनकी फ़ीस कम से कम 1000 भी रहता है, जी, तो देना मुश्किल है। मेरा तो दिल करता है उनको कुछ दें, बच्चे भी साथ होते हैं, सही छोटे-छोटे सही हमारी सही, हमारी बहनें फैमिलीज़ तो होती आती हैं, हैं। फैमिलीज़ आती हैं। जी, और ग्राउंड आबाद होने चाहिए। ग्राउंड आबाद है माशाल्लाह, कभी आपको मौका मिले तो आप 8:30 9 बजे के बाद आप देखें, उसमें लाइटें भी जली होती है। अब दिल करता है मतलब छोटे-छोटे बच्चे हैं, मतलब इनको दूध पिलाएँ, इनको निशान खिदमत करें, जी, बजाय उनसे लेने की। सही बात तो है। वो मेंबरशिप होगी तो वो उनकी फीस होगी, वो हम कहते हैं इनको फीस ना देनी है। लिया में यूँ तो रोज़गार के मसाइल हैं और गूनागून मसाइल और मुश्किलात हैं। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स जो है उसको रोज़गार का ज़रिया बनाया जा सकता है। पर साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये गेम है, अब क्रिकेट है, अरबों की गेम है, जी, उसमें तवज्जो तो है। फुटबॉल लिया की बुनियादी गेम मुझे याद है 80-85 जब आप भी फुटबॉल खेलते थे, 82-84, मतलब कितनी वॉलीबॉल और फुटबॉल मकबूल खेल, कौमी सतह के खेल कौमी थे। सतह के खेल थे। हॉकी भी थी। हॉकी कौमी सतह की खेल। हॉकी तो हमारे टाइम पे टॉप पे होती थी, वो जी, शहबाज सीनियर तो वो जो टाइम था वो खत्म हो गया। खैर इन्वेस्ट नहीं करते, क्रिकेट में इन्वेस्ट होता है, वहाँ बिजनेस भी होते हैं, खुद अपनों कमाते लिया के कई लड़के अब कौमी सतह पर अपनी सलाहियतें हैं। बोले सर वो जो नवा देखिए रहे हैं। वो एक यूनुस पता नहीं क्या नाम है, जिंद है वो हसन नौजवान, हसन हसन अली थे, हसन हसन नवाज। नवाज थे। हाँ जी। माशाल्लाह वो काम के बने, अब उन पे इन्वेस्ट करें तो वो बिजनेस बन जाएगा। पीटीवी की तरफ से खेल रहे हैं। खेल रहे हैं, अब उसको लिया बोल रहे हैं, वो यहाँ पे उसकी पब्लिसिटी होता है, कभी लोगों का वो रुझान होता है, तो बिजनेस में इजाफा हो। मैं कहता हूँ चलो पाकिस्तान लेवल पे नहीं होता, पंजाब लेवल पे नहीं होता, वो लिया वाले तो सोचे। सही बात है। एसीडीसी माले के लिए क्या बने बैठे हैं माशाल्लाह, जो हमारे एमएनए साहब हैं, मलिक अवैस साहब, उनके तो साथ इसी वाले क्लब में स्टेडियम। हम साइकी में है। उसके बाद वहाँ स्टेडियम है, स्टेडियम में फुटबॉल होती है, वो पता नहीं 17 साल से होती है। और उनके बुजुर्गों के नाम से कोई उनके अकेडमी। बिल्कुल बोले साहब, वो मलिक फजल जफर साहब के नाम से वहाँ फुटबॉल अकेडमी भी है। मैं तो इल्तिजा है उन मलिक चीफ साहब से, मलिक इफ्तिखार साहब, मलिक नूर नबी साहब, उनके बेटे हैं, फरजांद हैं, जी, वो आए वहाँ पे स्टेडियम में, वो ये अकेडमी को देखे, उसको खड़ा उसने करें, सरपरस्ती करे। मस्ती करें, उनके नाम की है, उन्होंने तो की हुई है ना। जी, मोहल्ले वालों में चौधरी वही साहब है, उसके हेड है अकेडमी के, उसके सदर है चौधरी रफीक साहब। उसमें वहाँ पे मिसाल है जो मेन जो सीनियर लोग हैं हमारे, ये कि वो वाजिद लकी साहब है, जी, चौधरी साहब हो गए, गुल्लू खान हो गया। वहाँ जैसे पे उन्होंने एक लीगल टीम भी बनाई हुई है, तो ये शाह साहब है, वो तलक खान साहब है, ये उनकी लीगल टीम भी है। जी, कम से मंसूर कम 20-25 नौजवान बच्चे मैं देखता हूँ, वो डेढ़ अल्हम्दुलिल्लाह, वो बिल्डिंग भी खूबसूरत मैंने बना दी, लेकिन उसमें कमी कुछ आई है। मंसूर मलिक साहब भी मलिक इसमें। मसूद साहब जनरल सेक्रेटरी है, वो तो जी, भूल गया, वो माफी चाहता हूँ, वो जनरल सेक्रेटरी है। वो बहुत खूबसूरत ग्राउंड बना है, उसमें एक फाल्ट वाले से दिए है उन्होंने, वो गेट खत्म कर दिया, जो मेन गेट होता था ना इस साइड में मगरबी साइड, जी, वो ऐसा गेट है, बोले साहब वहां से 3 वज़ीर-ए-आज़म आप इस ग्राउंड में जलसा किया, जलसा किया है। भुट्टो साहब ने जलसा किया, बीबी मोहतरमा ने जलसा किया, नवाज शरीफ 2 दफा। जी, ऐसे वो बिल्कुल। वहां पे एक अच्छा खासा वो मेरे ख्याल 20-25 फुट का गेट था, वो गेट उन्होंने खत्म कर दिया। गेट खत्म कर अब दिए। छोटा सा वो गेट है, अब वो इतना स्टेडियम है लगेगा। अब ये कमाल देखें, ये स्टेडियम 1963 की बात 65 बना, में ये 50 साल से भी ज्यादा हो 50 गई। साल से भी ज्यादा है। वो उस वक्त कोई असिस्टेंट कमिश्नर हुआ करते थे, उनकी अहलिया के नाम पे। जी अब वो बेवा वो थे मुस्तफा जैदी साहब थे, अच्छा। वो मेरा ख्याल है जी, मुस्तफा जैदी साहब थे। ये उनकी बेगम साहबा थी, ये उनकी मोहब्बत में उन्होंने बनाया था। लेकिन ये जिन्होंने संभाला हुआ है, कमाल तो उनका है। उनका है। अकेडमी वो अपनी मदद आप चलाते हैं, मैं तो चाहता हूँ बल्कि वो नबी साहब से इल्तिजा है, वो मेरे क्लास फेलो भी है एलएलबी, हमने 1997 में फर्स्ट पार्ट एलएलबी का इकट्ठे दिया था मुल्तान साइंस कॉलेज। सही। फिर उनको चाहिए वो, जैसे वो आप मैंने देखी है उनकी पोस्ट मोरे साहब की, वो बंद के लिए उन्होंने कहा अपनी मदद आपके तहत बंद बना है। जी, तो मैं उनसे इल्तिजा है बोले साहब से जी, वो यहाँ स्टेडियम का गेट ही एक बना है, स्टेडियम की जो एकेडमी है, जो नौजवान बच्चे माशाल्लाह, ताकि भी उसके लिए भी कोई थोड़ा सा और उसके तवज्जो। लिए तो इतनी काफी है कि स्पोर्ट्स जो ऑफिस है उसकी तवज्जो का रुख जो है
वो बच्चों की तरफ मोड़ अच्छा, वो दिया इतना जाए। पैसे भी नहीं लगते, सामने ही इनकी कोठी है। जी, ये साहब जो है, बोले कि फखार साहब साहब तहसील आजम, बिल्कुल सामने ही इनके वो मकान है, उनकी इनकी रिहाइश कोठी गाह है। है। लिया में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? बोले सर नया में सब खेल खेले जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन में भी आप देखते थे वो जो खेल थे, अभी वही खेल है। फुटबॉल भी है, वॉलीबॉल भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। फुटबॉल का अच्छा नाम है, भाई फुटबॉल के लोग, वॉलीबॉल के लोग भी माशाल्लाह बहुत अच्छा। वो यहाँ पे जो हेड बॉल, अब तो वैसे चेंज हो गए, नाम भी चेंज हो गए, शूटिंग आ गई। शूटिंग वो हो गई। जी, उसके बाद बैडमिंटन भी होती है, अब लेजर में तो काफी गेमें होती हाँ जी। एथलेटिक्स की बहुत है, सारी उसमें वहां पे इवेंट आ है। गए। बिल्कुल। तो अब लिया के जो खेल हैं, अब ये खेल में हज़ारों बच्चे जो हैं वो आ गए हैं। अगर इनकी सरपरस्ती की जाए, तो लिया के जो कि नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो रोज़गार खेल के ज़रिए भी कमा अल्हम्दुलिल्लाह सकते हैं। कमा सकते हैं। ये वॉलीबॉल होगी, फुटबॉल होगी, जैसे क्रिकेट में इन्होंने इन्वेस्ट किया है पैसा, वो कमाती है फॉउंडेशन भी, खिलाड़ी भी, ऐसे ये भी तो कमा सकते हैं। जी, अब ऐसे यहाँ आप जाए, कभी आपको मौका मिले, तो वो अकेडमी जो फुटबॉल की है वहाँ देखे नौजवान, माशाल्लाह दिल खुश है। मैं कभी कभी वो क्लब साथ ही है ना बोले का, मैं जी, उसको देख लेता हूँ, तो नौजवानों को देख के दिल खुश होता दिल खुश होता है। कुछ वीरा स्टेडियम के बारे में हमें बताइए। है। वही स्टेडियम तो यही है, रिया स्टेडियम हो गया, वो खातून भी फौत हो गई, जिन्होंने चलाया हुआ है, उनकी अजमत को सलाम, जिन्होंने उसको वो किया उसको हुआ है, ज़िंदा रखा हुआ है, वो उसको किया हुआ है, बहाल किया हुआ है, उनकी यादें बहाल की, उनके नाम को ज़िंदा रखा उनके हुआ नाम को जिंदा, मुस्तफा जहरी साहब, अल्लाह ताला उनको बख्शे, वो भी है। काफी 60 साल पहले की बात 4 है। साल पहले की पत्नी जिंदा हो गई। मैं कहा बल्कि वो डेथ हो गई थी उनकी। वो मुझे शेख हिंदर काशिफ साहब ने बताया था, वो उनकी डेथ हो गई थी। हुँ, वो कहीं से मुझे पता चला, उनकी खुदकुशी का नहीं वो मसला था। वो कहते हैं कि कत्ल है, वो कहते हैं वो खुदकुशी, हुकूकी लेवल का मामला था, वो तब थी। सही बात है। अच्छा, लिया में स्पोर्ट्स के अगर हम मसाइल और मुश्किलात की बात करें, तो आपके नज़दीक क्या मसाइल हैं? उन्हें सब मसाइल ही मसाइल है, नौजवानों को संभालने वाला कोई नहीं। ये स्पोर्ट्स बेहद चीज है, पॉजिटिव चीज है और अच्छी चीज है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये खेलना उसमें समझ में आ जाता है, ये मौजूद है। मौजूद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला देखते हैं वो अन्हु कब का मतलब है, वो नाम ही उनका कुश्ती कुश्ती वाला, वो बड़ा वाला उनका नाम है। जी पहलवानी अब करते कुश्ती थे। हमारे ज़माने में तो कुश्ती अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है, वो देखते भी, मतलब हम मैं जो बातें बता रहा हूँ वो बचपन जवानी की बता रहा हूँ या बचपन की, जी, वो यस। बातें 1985-90 में आ जाती हुँ, हैं। तो कुश्ती उस टाइम टॉप पे होती थी। हमारे जनाह पार्क लिया में कुश्ती का खेल आपको भी याद है, आप भी वहाँ उस टाइम मेरे ख्याल होते थे, जी, तो टॉप की कुश्ती होती थी। होते थे। कुश्ती तो अब भी कुछ न कुछ किसी न किसी वो शक्ल कहीं में ना देखो बहुत बड़ी है, मौजूद है, मौजूद है। मगर बहुत महँगी हो गई। एक एक आध जगह पे कुश्ती हो मेरे साथ, तो हाँ, उसको हम कैसे करें? एक तस्वीर है, एक लिया सिटी है, 4-5 लाख की आबादी हो, तो वहाँ कोई एक जगह पे वो कोई ना कोई मेला लग गया कुश्ती का, जी इसको तो कुछ नहीं कहते। नहीं कहते, बाहर इसकी सरपरस्ती वो खेल नहीं है, खेल हुकूमत के की काम है, बहुत। डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट्स ऑफिसर के जिम्मे है सब, उसकी ड्यूटी है। मसला ये होता है, मैंने पिछले भी एक दफा आपने मुझे कहा था, वो डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट्स ऑफिसर जब तक ये लेंगे नहीं आएंगे, बोले साहब उनको पता नहीं है, डीसी आता है, एसी आता है, वो उनको मखसूस तबका लेकर जाता है, उनके बाद उनके लिए वो नैया बच रही है। वही चंद लोग होते हैं, जी, बस वही लोग अपने मफाद के बदले किसी के खिलाफ, किसी को बदनाम करना है, किसी के पग उछाल दिए वो उछाल देते हैं अपनी बल पे। आपको मतलब है, अफसोस होता है, मुख्तलिफ एडीज होते हैं, झूठी एडीज एडीज कहते हैं, झूठी भी नहीं होती, किसी का ऐसे बदनाम कर देना ये भी अच्छी बात नहीं, ये भी डीसी साहब को सोचना चाहिए। और डीसी साहब के नाम की आईटी जेली और इम्पार्शल ये बात दुरुस्त है, मगर पाकिस्तान में तो अब हर चीज़ मुमकिन है। नहीं होनी चाहिए ना, मुमकिन तो है। होना नहीं चाहिए, उसको एक पैसे देखें, कानून की डीसी हुक्मरानी होनी साहब की आईटी जेली चले कैसे मुमकिन? चाहिए। डीसी साहब को पता ना हो, डीसी साहब ने कंप्लेन की हो, कैसे? ये तो होना चाहिए, डीसी साहब की कंप्लेन भी होनी चाहिए, और डीसी साहब लाख कहे भी ये जेलिए जेलिए, तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? सही बात है, इसका मतलब है आपके बंदे चलाते हैं। सही बात है। अच्छा, ये बताएँ कि अगर हम नौजवानों को की लाइफ़ को अगर एक अलग चैप्टर में डिस्कस करें, तो लिया के नौजवानों को आप किस स्टेज पे खड़ा देखते हैं? मतलब सिर्फ नैया के नौजवान लोग तो बेपनाह टैलेंट है, मतलब सब तलीम के हवाले से देखें, स्पोर्ट्स में भी कोई काम नहीं। अब जैसे वो हसन नवाज हिंद है, जी, तो टैलेंट तो है। जब आपको याद होगा एक दफा वो क्रिकेट के वो भी आते थे प्ले, जी वो कोई कैंप पता लगते थे। नहीं कैंप लगते थे, वो आते थे, कहाँ गए वो क्या? अब वो अगर मंथली आ जाए तो इतना पैसा है फंड इंदिराज भट्टी साहब के पास है, तो वो फंड लगा है। अब बाहर से कोचेज़ बुलवाए जा सकते हैं। और सब कोचेस, हमने एक दफा सिविल क्लब लिया में कोच मंगाया, जी, अब कितनी फोर्स आती है, वो वाजिद अली शाह साहब उनकी मेहरबानी है, उन्होंने वो मंगवा के हमें दिया था।
اب جو کوچ آتا ہے اس کو یہاں پہ اس کو جگہ بھی دینی ہوتی ہے, اکاموڈیشن ہوتے ہیں, کھانا پینا ہوتے ہیں, وہ تو لگانا ہوتا لگائیں ظاہر اخراجات ہے. ہوتے ہیں وہ کہ ڈی سی صاحب واجد شاہ کی مہربانی تھی, وہ گیم نہیں کھیلتے تو ماشاء اللہ ان کی گیم بہت اچھی تھی, جی انہوں نے سپورٹ کیا. اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ سپورٹس جب تک افیسر خود سپورٹس مین نہیں ہوتا اس کی توجہ نہیں ہوتی. ظاہر یہ تو بنیادی بات کبھی ہے. افیسر سپورٹس مین آ گیا تو پھر اس کی دلچسپی بھی ہوتی ہے, وہ پھر توجہ بھی دیتا سول کلب کی اور اسپورٹس کے جو ہے. مسائل ہیں سپورٹ وہ چلے جائے. میرے خیال ہے ہزاروں نوجوان ایسے ہیں جو مثال انتظام میں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی آگے چلتا ہے. بک فٹ اپ بال کریں. میں, والی بال میں تو بے پناہ نوجوان. جی ہاکی ختم ہو گئی. ہاکی لیا میں ختم ہو گئی. ہاکی ختم اس لیے ہوئی ہے, پلیئر ہیں, بچے بھی ہیں, شوق بھی ہے. میں دیکھتا ہوں وہ میرے خیال ایک گراؤنڈ ہے اسٹیڈیم کے ساتھ والا, بڑا وہاں گراؤنڈ ایک دفعہ میرے خیال اب مجھے نہیں پتا ہوتی ہے, وہ بچوں کو میں دیکھتا تھا وہ ہاکی لے کے جا. ہے. اب تو قومی سطح پر بھی وہ ہاکی ابھی جو ہے, نہیں پتا. اب تو پاکستان جو ورلڈ چیمپئن تھا, اولمپک چیمپئن تھا, وہ کوالیفائنگ راؤنڈ کھیل رہا ہے. اب تو وہ ڈیزی لیئر سے جہاں جاتے ہیں, وہ جو جن کا نام بھی نہیں ہوتا تھا ان سے بھی لوز ہو جاتے ہیں, ان سے جاپان سے لوز ہو جاتی ہے. اب تو ان کے پاس ہاکی کی حکمرانی ہے جو کبھی آخری نمبروں میں بھی نہیں آیا کرتے تھے. ضرورت تو یہ ہے نا, وہی لوگ آ جاتے ہیں جن کو پتا آتا بھی نہیں ہوتا تھا. جی اب یہ اب تو فیڈریشن میں وہ لوگ آتے ہیں جو حقدار بنتے ہیں, وہ لوگ بنتے ہیں جو سفارش والے ہیں, پرچی والے ہیں. اب ذکا اشرف کو بنائے گے کرکٹ کا چیئرمین تو اس کو تو سپورٹ میں ہے نہیں ہے. نہ اس کا اس لیول کا. جب ٹھیک ہے ایک دفعہ بن گیا وہ حالات پتہ نہیں کیسے تھے اس ٹائم. جی اب حالات تو ویسے نہیں ہے, نہ گیم ویسی ہے, نہ کرکٹ ویسی, نہ فٹ بال ویسی ہے, نہ والی بال ویسی. تو ظاہر ہے جس کا کام اسی کو اسی سارے. کے ساتھ ہی تو اگر کھلاڑی ہی اگر اسپورٹس بورڈ کے اور فیڈریشن کے عہدیداران ہوں گے تو ان کو بہتر اندازہ ہوگا. ان کو بیچ میں بٹھانا ان کو تو پسند ہی نہیں کرتے. جو ٹاپ کے مثال ہے کرکٹ کی لے لو, ٹاپ کے کتنے بیٹسمین ہیں جو 12 جی وہ تو ان کی, لیکن جس کے اس میں نہیں آتا لسٹ میں, ان کی جو میٹنگ ہوتی ہے انڈیویجلی ٹھیک ہے, آفیشیل نہیں ہے, ان کو بلا کے تجویزیں تو لے سکتے ہیں. لے سکتے ہیں, سینئر ہیں آپ تجویز مانے نہ مانے یہ غلط ہے. اب مطلب ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ہے کیا بڑی صاحب, جی اب اتنے لیا میں ٹاپ کے پلیئر آپ بھی موجود ہیں فٹ بال کے, آپ کے بالکل زمانے کے لوگ آپ بھی موجود ہیں موجود ماشاء اللہ. ان کو شوق میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی رحیم خان کالیہ صاحب وہ فٹ بال دیکھنے آ جاتے آ جاتے ہیں, بڑے اچھے کھلاڑی ہیں. تھے, اس ٹائم وہ فٹ بال اچھی کھیلتے تھے بہت اچھی کھیل. جوانی میں, جب آپ باقی بچپن میں بلکہ. جی لیکن ایسے لوگ ہیں ان کو فروخت خدان صاحب ہو گئے. فٹ بال ماشاء اللہ یہ آزاد کلب ہے نا جو آسٹریلیا میں, جی چٹال کلب ہے, کافی کلب ہے, دونوں بڑے زبردست ماشاء انہوں نے اللہ کھلاڑی پیدا کیے ہیں, پیدا کیا. اور ہے پیدا تو کیے, وہ موجود ہے کیا. موجود ہے. کبھی کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹی پارٹی کا جس سے سپورٹ آفیسر, ٹی پارٹی میں کتنے پیسے لگتے ہیں. اگر کھیلوں کی سرپرستی ہوگی تو ہمارے نوجوان جو ہے adjust ہو جائیں. بہت سارے جو منفی سرگرمیاں ہیں ان سے بچ جائیں گے. بالکل بات ہے. گراؤنڈ آباد ہوں گے تو ہمارے ہسپتال جو ہے بالکل. تو وہ ان پہ لوڈ کم ہو جائے گا. بلکہ پچھلے دنوں میں نے دیکھا وہ آپ کے جو مہمان تھے وہ نوجوان بچہ وہ شاہ صاحب کو نہائش شاہ والا جی تنصیر شاہ صاحب کا. تنصیر شاہ ان کا بیٹا, ہاں جی وہ بھی مطلب ایسے وہ بلکہ وہ تو فٹ بال میں غیر ملک کو انہوں نے پلے کیا, انڈر 16 ان کو میں پتہ نہیں. سارک گیم میں انہوں نے پاکستان کی یہ تو آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا بچے کو, اتنا ٹیلنٹ ہے اس بچے میں, بتائیے کسی کو. وہ زبردست بچہ کھلاڑی ہے, اور وہ بڑا اس کا تو جو کھیلنے کا سٹائل ہے اور جو ان کی جو محنت ہے, ان کی جو محنت ہے وہ تو بہت گھنٹے انہیں پریکٹس کرنی اب وہ پڑتی ہے. بچے نے اتنا کیا ہے, اب اس کو آپ جی ادھر موقع دے کیا موقع ملنا چاہیے, ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. تو یہ بات آپ کی درست ہے. اپنا خان صاحب ماشاءاللہ سننے میں آیا ہے کہ آپ حج کی سعادت کے لیے تشریف لے گئے. الحمدللہ جب اللہ پاک نے مہربانی کی, خواہش تھی وہ اپنی پوری ہو گئی ہے. 10-15 دنوں بعد کب روانگی ہے؟ 13 مئی 13 مئی کو روانگی ہے. ماشاءاللہ زبردست. اللہ تعالیٰ آپ کے اس حج کو اور اس سفر کو قبول فرمائے. اللہ پاک آپ کو بھی آمین آمین. آج کل حج کے اخراجات کہاں تک پہنچ گئے؟ سر صاحب اس میں وہ اب کیونکہ میں وہ خود اس سفر میں شامل ہو گیا ہوں. میں تو پہلے بھی پوری تنظیم کرتا تھا, حکومت کے ذمہ ڈالتا تھا. جی اس ٹائم تو حج تھا میرے خیال 4, 4.5, 5 لاکھ, یہ مطلب زیادہ پہلے نہیں 5-6 سال پہلے چلے ایسے. وہ اب انہوں نے کہاں سے کہاں تک گزار دیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں چکر میں تھا حج مفت ہو جائے, ٹھیک ہے مکہ بنا رہا ہے, لوگ اپنی کنوینس پہ چلے جائیں. ایسے بالکل ایسے بائی روڈ کراچی تک جائیں, مطلب اتنا فاصلہ نہیں ہے, بیچ میں سمندر میں آپ سورگ ڈال دیں. آج سے پہلے لوگ بائی روڈ ہی جاتے تھے, وہ اونٹوں پہ جاتے تھے یا قافلے جیسے بھی جاتے تھے, وہ وہاں سے جہاز پہ, وہ جہاز میں آپ آسمان پہ پہنچ گئے, اس میں پیسہ ہے لگانے کے لیے. سمندر میں آپ سورگ ڈال دیں 500 کلومیٹر, امان کی جو گوادر سے امان 500 550 کلومیٹر, اس میں بچھائے سورگ.
अल्हम्दुलिल्लाह फिर लोग अल्लाह के फजल से मुत्तफाक भाई छोड़ जाएंगे। भाई इसको लौट सस्ता जाए, होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, बहरी बहरी सफर शुरू होना वो भी चाहिए। स्टार्ट हो सकता है। इतने अच्छे अच्छे जहाज वो तो पहला जमाना तो खत्म हो गया, खत्म जहाज हो वो सफीर स्लो होती थी, जी। अब तो सफीर वाले जहाज आ गए। बड़े जी, अच्छा अच्छा सफर हो सकता है, अच्छा हो सकता है। बाई रोड हो सकता है। अब भी 45 दिन का है ना मेरे साथ, जी, तो ये भाई और भी 45 दिन का बने। ऐसे बिल्कुल नैया से निकले मतलब में 2 दिन में आप गाजी पहुंच जाएंगे। मैं तो मतलब जाती है फिर दिन के बाद मोटरसाइकिल वो भी जा सकते, ऐसे इतना आसान बना है। देखो लोगों का एक अकीदत है, एक मोहब्बत है, फरीजा है। उनका ड्यूटी तो है, हाँ फर्ज जी। तो है, जी, तो उसको आसान बनाना चाहिए। आसान बनाना चाहिए, मगर हमारी हुकूमतों के पेश नज़र कभी ये भी चीजें है ही नहीं। तवज्जो होती है हुकूमतों की, लेकिन वो फिर कीमती डॉलर की इजाफा हो जाता है तो उसकी वजह से चीजें रहेगी। मगर इस तरफ आना, उस पर तवज्जो देने पे तो डॉलर खर्च नहीं आता है। इसमें देखो सब्सिडियाँ होती है, खिलाफ पैकेज इसको भी पैकेज बना लो। इससे जमीनी सफर से हमारे जो इस्लामी मुल्क हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे। वैसे यहाँ से भी रास्ता बना हुआ है जी। जाने का, वहां से वो चाह बहा जो बंदर है, जी, वहां से 100 किलोमीटर भी नहीं बनता वो दुबई वाला, वो जो दुबई के साथ जो है ना जगह, रास्ते तो मेरा ख्याल मौजूद है। है 49 50 किलोमीटर चल जाए 100 लगा ले, जी, तो वहां से बूट जाती है। मेरा ख्याल है वो बोट उनकी जो कश्ती है वो 3 4 घंटे के 2 घंटे में पहुंचा देती है बाद उस किनारे, तो वहां से भी भाई रोड जा सकते हैं, जा लेकिन इसमें सकते, कोई पैकेज बनाना चाहिए ताकि आवाम के लिए आसानी हो, आवाम को सहूलत सहूलत हो लोगों के लिए, हो। ये अच्छा लोगों का हक है। चलो मुफ्त नहीं दे सकते, उसको सस्ता सस्ता होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए। इतने लाखों रुपए बहुत लाखों ज्यादा में मैं तो लाखों का कह भी नहीं हूँ, मैं तो उस टाइम भी कहता था वो 50 लाख, है। ज्यादा ज्यादा उसको 1 लाख तक ले जाए ना, जी, आज चलो उसमें डबल हो जाए ना। सही बात है, अच्छा बिल्कुल। उसमें दिन में 45 है, जी, आज का दिन है 5, 5 दिन, अब उसको दुरानियां कम किया जा उसमें वो भी सकता कम हो सकते हैं, उसमें काफी कुछ हो सकता है, पर हुकूमत को चाहिए सोचना चाहिए। है। नजरसानी बहुत सारी चीजों नजरसानी में बस हो सकती है। तो आप हुकूमत से, हमारी जो ये हुकूमत है या साबका हुकूमत है या आने वाली जो सरकार है, क्या तवक्को करते हैं कि ये हमारे जो बुनियादी मसाइल है, महंगाई है, ये भी आपने जिसकी तरफ निशानदेही की, उनमें इतनी सख्त है कि वो हमारे लिए कुछ आसानियां पैदा करे। तो सब आसानियाँ हो सकती है। अभी तो खैर काफी मुहैदात हो गए हैं, सऊदीया के साथ भी है, वगैरह के साथ, ईरान के साथ भी खुफिया मामला हैं, उसको अपने हाईलाइट इन्होंने नहीं किया क्योंकि पाबंदियों की वजह से। तो सब तेल डालर, जी। ये तेल सस्ता हो जाए ना, काफी चीजें आप गिर जा रही है, पेट्रोल जिसको कहते जी, हैं, ये सब बिजली सस्ती हो जाए, मुफ्त नहीं दे सकते ना, आपने तो वादा किया था ना 200 यूनिट, दो एक सौ पार्टी ने यूनिट कहा था मैं अगर 300 यूनिट, एक जी। पार्टी ने कहा था 200, हाँ मैं जी, कहता 200 नहीं 100 यूनिट मुफ्त था। 50 कर दें। बोले सर 100 यूनिट कोई मसला नहीं है, उसकी मेरे को डेली महीने का मेरा ख्याल है वो ज्यादा पैसे देते 5 10 रुपए, आटे पे दे सकते हैं, बिजली पे दे दे, यस। बिजली पे नहीं दे सकते उनको वो 16 प्लेट मुफ्त दे दे जी। तमाम लोगों को। बसूस इतने जो है 1 लाख देने 5 लाख देने, वो इतनी बात, बाकी जो आबादी है वो कहाँ जाए। अब मेडिसिन ही सस्ती कर दें। बोले सर सब कुछ सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल बिजली सस्ती कर देना, लोग दोनों पुष्ट सुकून के साथ में। अब तो लोगों की जिंदगी बड़ी मुश्किल में है, मुश्किल है, आप जिसका बिल मिसाल है उसका एसी भी ना हो तो बिल आ जाए 16 हजार 20 हजार, वो कहाँ जाए। जीरन हो रही है उनकी। मैंने कई जगहों पे देखा है बेचारा सेल्समैन की तनख्वाह भी 16 से 20 हजार, और उसे उसका बिल भी 20 हजार आ कई जाता है। जगहों पे मैंने देखा सेल्समैन पूछे 18 हजार, कोई कहते 16 है, कोई कहते 20 है, बिल भी उतना आ जाता है, तो बच्चों को भी पालना है। लोग किसका सांस लेते होंगे। मेरे सब लोग बहुत मुश्किल में। मैं तो कहता हूँ इसके तो वो सब कुछ मुफ्त होना चाहिए। तलीम जैसे मैंने पहले कहा, तलीम मुफ्त होनी चाहिए, हेल्थ मुफ्त होनी जी। चाहिए, एक कार्ड बनाओ कहीं से भी आपको दवाई दी जाए। जैसे वो मैंने पिछली दवाई जब आपको बुलाया था, वो एक मतलब सुपर स्टोर है इस टाइप का, वो जो है जिसको क्या कहते हैं वो यूटिलिटी स्टोर, जी, उसमें मोहल्ले वाइज बंद है, उसमें तमाम चीज है, जो भी चीज आप लेना चाहे वहीं से मिले, कार्ड दे आपको चीजें वो मुफ्त दी। मुफ्त में। इतना बजट है, इतना पैसा है, वो लगाए और वहां पर। करप्शन अगर खत्म हो जाए, बद इंतजामी खत्म हो जाए मतलब तो वो उसका मुश्किल है खत्म होना, उसका खत्म होना मुश्किल होता है, वो सब के सब मुलविस है। अब कहाँ जाए पटवा, उसने इस हिसाब को भी तो हिसाब देना है, तहसीलदार को भी दे देते हैं, वो कहाँ जाए। यस। एक मतलब है, मैं उसमें बात तो गिले वाली है। अब मैं परेशान भी होता हूँ, मैं हज में जा रहा हूँ तो मैं अब दिलो शिकों से बचूं, जी, लेकिन जहाँ जाता हूँ ये मसाइल है, ये मसाइल है। उसका हाल भी मेरे पास नहीं है, उसका हल तो किसी के पास नहीं किसी है। के पास भी नहीं। हुकूमत डीसी एसी जब खुद शामिल हो इन कामों में तो कहाँ जाएंगे।
ये मैं तलीम जाता हूँ कि मसैल बता रहा हूँ, आम बंदों को पता नहीं चला, उनकी तो बात ही कोई नहीं पूछता है। हम जाते हैं, खान साहब आ जाए, बैठे, खान साहब को बिठा के, खान साहब घंटे आते बाद बैठ बैठ के, वापस काम नहीं होता, बस इधर तक नहीं हो जाती है, भागे पौधे बंद बनाओ, हाँ सब आपके साथ गुफ्तगू करते हुए 30 मिनट का पता ही नहीं चला। पता नहीं चलता। बस अब जिंदगी ऐसे है, पता नहीं चलता, ये आधा घंटा। हाँ जी, कि हमारे दोस्तों के नाम क्या पैगाम दे रहे हैं? दोस्तों के नाम यही पैगाम है, पॉजिटिव। मैंने पहले ये पैगाम दिया था, मुआवजे बांटे, नौजवान नस्ल को संभाल। सही बात, बेशक मैं सही। एक छोटा सा और पैगाम है, अपने किचन को संभाल। किचन को संभाले। किचन संभाल लेंगे आप, सेहत देखो, सेहत वो दुआ देते थे मुझे, ईमान और सेहत वाली दुआ है। जी। सेहत, ईमान को पहले पहले सेहत को लेते हैं, किचन में आपकी सेहत है, अपने किचन में तवज्जो नहीं, आपका वजन ज्यादा नहीं होगा, हम्म, अब स्मार्ट होगा, जैसे हो कलर कम खाए। आपकी कितनी दवाइयों का इलाज उस किचन में, बेशक। लवंग में इलाज है, दालचीनी में इलाज है, आपके अंदर जितने आइटम उठा ले किचन में, उनमें इलाज। आप सेहतमंद है तो आपकी इबादत भी अच्छी होगी, यस, यस। आपके एक्सपेंसेस भी कम होंगे, आपकी जिंदगी में जिंदगी आसानी सीधी हो जाएगी, आसानी होगी। इबादत भी अच्छी होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो, सेहत भी अच्छी बेशक, बेशक। खान साहब बहुत शुक्रिया, होगी। आपने वक्त दिया। फ्रेंड्स, सलमान सोहेल खान चांडिया साहब की सपोर्ट से लगाव भरी शख्सियत की गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई। माशाल्लाह, हज पे तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, अल्लाह ताला इनका सफ़र आसान करे, सब मुबारक करे। और स्पोर्ट्स के हवाले से नौजवानों को जिन मसाइल और मुश्किलात का सामना है उसका जिक्र कर रहे थे, स्पोर्ट्स को ज़रिए रोज़गार बनाने की बात कर रहे थे कि अगर हुकूमती सरपरस्ती हो तो लिया के कई नौजवान अब खेल के ज़रिए रोज़गार कर रहे हैं। तो इस नौजवानों को और ज़्यादा ये मौके फराहम हो सकते हैं, खेलों के और बहुत ज़्यादा। मियाँ चन्नू के जिस तरह मोहम्मद अरशद है वो जूलियन थ्रो में उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया, इसी तरह लिया के भी नौजवान अपना नाम रोशन कर सकते हैं। यकीनी तौर पर खान साहब की गुफ्तगू जो है वो आपको पसंद आई होगी। हमें आपकी राय का, कमेंट्स का इंतज़ार रहता है ताकि आपकी आरा की रोशनी में हम अपने प्रोग्राम को खूब से खूब तर बना सकें। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। प्रोग्राम प्रोड्यूसर अब्दुलरहमान फरीदी और अपने मेज़बान मकबूल रह को इजाज़त दीजिए, इस ख्वाहिश और इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हो अपने हिस्से की शम्मा जलाते रहें। अल्लाह ने